Very good morning, students. I hope you all are well and revise your previous chapter. So today we are going to start with the third chapter, which is about PowerPoint. And let me make you understand about PowerPoint. PowerPoint is basically a application which is used to which is used to make our presentations and make enhancement of text and different use of effects in the presentation. So in this lesson we will be going to start with our few topics, which are inserting different objects in PowerPoint slide, animation painter, animation with text, effect options, dialog box, and animation pane. So these are the few topics which we are going to study in this chapter, which we are going to learn about advanced features of MS PowerPoint. Now, Microsoft PowerPoint provides various tools and features to enhance the appearance of a presentation. Microsoft PowerPoint क्या करता है, ये हमें बहुत सारे टूल्स और फीचर्स प्रोवाइड कराता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को एनहांस कर सकते हैं. These special effects assist you in making your presentation attractive, effective, engaging and professional. मतलब ये स्पेशल इफेक्ट्स जो होते हैं ये हमें अलाउ करते हैं कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव लगे, एंगेजिंग लगे एंड as well as professional दिखे. The use of special effects create a better impact on the audience. और यहाँ पे जो हम special effects को use करते हैं वो हमारी audience पे एक बहुत अच्छा effect डालते हैं. PowerPoint presentations can be made into photo album complete with music or narrations to distribute on CDs or DVDs. All in all, PowerPoint is a one stop shop. मतलब अगर हम थोड़े वर्ड्स में बोले तो PowerPoint क्या है, one stop shop to create a successful presentation for the business world, the classroom or just for your own personal use. मतलब यहाँ से ये एक इकलौती ऐसी शॉप है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्कूल के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं. Besides basic presentation operation, PowerPoint supports a wide range of advanced presentation operations. मतलब basic presentation के अलावा यहाँ पे जो PowerPoint है वो हमें advanced presentation operations भी allow करता है. In this chapter we will discuss some advantages features of PowerPoint. अब इस chapter के अंदर हम लोग बहुत सारे advanced features के बारे में पढ़ेंगे जो हमें PowerPoint में मिल जाते हैं. Inserting different objects in PowerPoint slide. PowerPoint slide में हम यहाँ पे different objects को insert कर सकते हैं. Objects are primary elements like pictures, clip art, audio और video, etc. ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी एलिमेंट्स हैं हमारे पावरपॉइंट के अंदर दैट यू कैन ऐड इन योर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, जिन्हें हम अपनी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं. नाउ फर्स्टली इंसर्टिंग अ पिक्चर. एडिंग पिक्चर कैन मेक योर प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग. पिक्चर को इंसर्ट करेंगे अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन में तो वो बहुत ज्यादा उसको अट्रैक्टिव और एंगेजिंग बनाएगा. यू कैन इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम अ फाइल ऑन योर कंप्यूटर ऑन टू एनी स्लाइड. हम अपने कंप्यूटर के अंदर से, हमारे दिस पीसी के अंदर से जाके कोई भी अपने कंप्यूटर के अंदर से जो पिक्चर है उसे अपनी स्लाइड पे हम अपलोड कर सकते हैं. देयर आर टू वेज टू इंसर्ट अ पिक्चर ऑन योर स्लाइड इन पावरपॉइंट. हमारे पास दो वेज हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं. यूजिंग कंटेंट प्लेस होल्डर. मोस्ट ऑफ द टाइम पावरपॉइंट ऑलरेडी हैज अ न्यू स्लाइड. चेंज द लेआउट ऑफ दिस स्लाइड टू टाइटल एंड कंटेंट by selecting the home tab, layout, title and content option. हमें क्या करना है, हमें अपने स्लाइड का जो लेआउट है उसमें चेंजेस क्रिएट करने हैं टू टाइटल एंड कंटेंट. टाइटल एंड कंटेंट में जैसे हम होम टैब पे जाएंगे, फिर लेआउट, देन टाइटल एंड कंटेंट ऑप्शन. Click on there we will click on insert picture from file button in the content placeholder highlighted in red, जो red color में highlighted होगा. Now there is a brain booster. Every second more than 350 PowerPoint presentations are started around the world. For each day this makes about 30 million presentations in total. So this is the record of our PowerPoint application. Using insert picture tool. You can also insert picture using insert picture tool. हम insert picture tool का use करके भी picture को insert कर सकते हैं. To insert a picture, you have to follow given steps. Select the insert tab in the ribbon and click on pictures button. हमने insert tab पे जाना है, then we will be going to click on pictures button. Now select this device to insert the picture from your own device or online pictures to select any online picture. मतलब यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं. दिस डिवाइस की मतलब हमारे डिवाइस के अंदर जो इमेजेस है हम वहां से कुछ लेंगे या फिर
ऑनलाइन पिक्चर्स, हम ऑनलाइन नेट से भी यहाँ पे अपने लिए पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ईदर वे एन इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर विल बी ओपन। हमारे को हम जो भी सिलेक्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा, एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स हमें मिलेगा। नेविगेट टू द फोल्डर वेयर योर पिक्चर आर लोकेटेड। यहाँ पे हमें उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे भी हमारी जो इमेज है जो हमें इंसर्ट करनी है वो लोकेटेड है। यू विल सी द आइकन्स और थंबनेल्स द पिक्चर एज वेल शोइंग बिलो। हमें यहाँ पे क्या होगा, पिक्चर्स और थंबनेल्स मिलने लग जाएंगे और यहाँ से हम अपनी नीड के हिसाब से अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे। देन वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। तो हमारी जो सिलेक्टेड पिक्चर है वो हमारी पावर पॉइंट स्लाइड पे आ जाएगी लाइक दिस। नाउ द पिक्चर कैन बी एडिटेड बाय रीसाइजिंग, मूविंग, रोटेटिंग एटसेट्रा। और इस पिक्चर को हम एडिट कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। नाउ इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं? पावर पॉइंट अलाउज यू टू एड इफेक्ट टू द टेक्स्ट बॉक्स। पावर पॉइंट हमें अलाउ करता है कि हम इफेक्ट्स ऐड कर सके अपने टेक्स्ट बॉक्स में, which is known as word art, जिसे हम क्या कहते हैं, word art कहते हैं। For the most part, the types of effects you can add are the same as the ones you can add to the shapes and text boxes, यानी कि shadow, level, etc. तो हमारे पास मोस्टली जो हम टेक्स्ट वगैरह के लिए एडिट करते हैं इफेक्ट, वो ही जो टाइप्स हैं वो ही हम अपनी शेप्स और इन सब के लिए भी यूज करते हैं। However, with word art you can transform the text टू गिव इट अ वेवी, स्लांटेड और इन्फेंटेड लुक। यहाँ पे हम जब टेक्स्ट की बात करते हैं तो हमारे पास ये 3 इफेक्ट्स और ऐड हो जाते हैं जो हमने टेक्स्ट के अंदर प्रोवाइड करा सकते हैं। वर्ड आर्ट ऑफर्स एडिशनल इफेक्ट्स लाइक आउटलाइन टेक्स्ट, फिल, ग्रेडियंट, 3D इफेक्ट एंड शेडो इफेक्ट। ये कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे अपने टेक्स्ट के लिए मिल जाते हैं। अब अगर हमें वर्ड आर्ट को इंसर्ट करना है तो वी विल बी फॉलोइंग फ्यू स्टेप्स। On the Insert tab in the text group, click Word Art. The Word Art style gallery opens. Choose the style you want to insert and then click on it. A text box will appear with the text Your Text here. Also, the Word Art style you have selected applied to it. Edit the text to whatever you want to. तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इंसर्ट टैब पे जाना है। टेक्स्ट ग्रुप में वी विल बी क्लिकिंग ऑन वर्ड आर्ट। हमें एक वर्ड आर्ट स्क्रीन मिलेगी, वहां पे वो हमसे पूछेंगे टाइप योर टेक्स्ट। जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है हम वहां पे सिलेक्ट कर देंगे और अपने जो हमारी वर्ड आर्ट हमें अप्लाई करनी है हम उस टेक्स्ट पे अप्लाई कर देंगे। एट दिस पॉइंट यू विल सी अ ड्रॉइंग टूल, फॉर्मेट, कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट टैब। इस तरीके से वो हमें मिलेगा। हियर यू विल फाइंड द वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप। यहाँ पे हमें एक वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप अवेलेबल होगा, which is this. Then this contains the preset styles gallery and drop downs for controlling the text fill, text outline and text effects, जिसके अंदर text fill, text outline and text effect यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। Also you can see there are a lot of possibilities to explore और वहाँ पे बहुत सारे different options हैं जिन्हें हम explore कर सकते हैं। Now adding slide transitions. Slide transitions को कैसे add करना है? Slide transition is a visual effect that occurs when you move from one slide to next during a presentation. Slide transition एक visual effect है जो occur होता है जब हम एक slide से दूसरी slide पे अपनी presentation पे जाते हैं। It controls how and when the slide should appear during the slide show. और ये कंट्रोल करता है कि कैसे जो हमारी स्लाइड्स हैं वो अपीयर होनी चाहिए ड्यूरिंग द स्लाइड शो। स्लाइड ट्रांजिशंस इन पावरपॉइंट इंक्लूड मेनी ऑप्शंस लाइक टाइमिंग एंड साउंड। जो स्लाइड ट्रांजेक्शंस होती हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करती है जैसे टाइमिंग और साउंड। इन ईदर द स्लाइड शॉर्टर और नॉर्मल व्यू, सेलेक्ट द स्लाइड और स्लाइड्स ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द ट्रांजिशन। हमें स्लाइड सॉर्टर या फिर नॉर्मल व्यू में क्या सिलेक्ट करना है, उस स्लाइड को सिलेक्ट करना है जिसपे हमें ट्रांजिशन अप्लाई करनी है। अब हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे विद गिवन स्टेप्स। सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू ऐड ट्रांजिशन टू। सबसे पहले हम उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें ट्रांजिशन ऐड करनी है। फ्रॉम द रिबन मेन्यू सेलेक्ट ट्रांजिशन टैब एंड चूज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन टैब्स में जाके हम ट्रांजिशन चूज करेंगे। द कॉमनली यूज्ड एनिमेशन विल अपीयर इन द सेंटर। और जो कॉमनली यूज्ड एनिमेशन है वो हमें सेंटर में मिल जाएगी। टू प्रीव्यू द प्रीवियस ट्रांजेक्शन ऑप्शंस क्लिक डाउन द एरो। और अगर हमें और देखनी है तो हम एरो पे क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। सेलेक्ट द ट्रांजिशन फ्रॉम द लिस्ट, क्लिक इट व्हेन अप्लाई द ट्रांजिशन टू द स्लाइड। यू कैन आल्सो सेलेक्ट अप्लाई टू ऑल। मतलब हम यहाँ पे से अपनी डिजायर्ड ट्रांजिशन सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन और है कि अप्लाई टू ऑल, मतलब जितनी भी हमारे पास स्लाइड्स हैं उन सब के अंदर वो ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगी।
In the duration option, enter the speed at which you want the transition to play, और duration में जाके हम time set कर सकते हैं कि कितने time के लिए हमें वो transition चाहिए. In the sound field, use the drop down menu to select a sound to play during the slide transition if desired. अगर हमें चाहिए कि जैसे जैसे transition हो वैसे वैसे कोई sound आए तो हम sound field में जाके एक desired sound को choose कर सकते हैं. Then indicate how you want the slide transition to occur by selecting an option under the advanced slide heading. Select on mouse click if you want the transition to take place when you click the left button. Select automatically after if you want the transition to occur after specified time. देखो यहाँ पे हमारे को दो ऑप्शंस मिल जाते हैं कि या तो हमारी जो ट्रांजिशन है वो होगी ऑन द लेफ्ट बाय लेफ्ट क्लिकिंग आवर माउस, या फिर ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारे ऑटोमेटिकली हो जाएगी वो जैसे ही हमारी ट्रांजिशन अकर होगी ऑन अ specified time. Use the up and down arrow keys in the blank box to specify the number of seconds which should pass before the transition takes place. और हम उस डिजायर के अकॉर्डिंगली अपने टाइम बॉक्स के अंदर टाइम भी सेट कर सकते हैं यूजिंग अप एंड डाउन एरो. नाउ एनिमेशन विद टेक्स्ट. Animation effect enhance the visual appeal of the presentation and help us to grab the attention of the audience. Animation effect क्या करते हैं, हमारी overall presentation को enhance करते हैं. Also they get the attention of the audience. We can add animation effects to objects such as text, pictures and charts. इसके अंदर हम text, pictures और charts में अपनी animation apply कर सकते हैं. Now we have different types of animations. What are these? There are many different types of animation effects you can choose from and they are recognized in four types. Four types की यहाँ पे हमें animation मिल जाती है. First is entrance. As the name suggests, these effects decide जैसे एंट्रेंस हम लोग वर्ड पढ़ेंगे तो एंट्रेंस यहाँ पे क्या डिसाइड करता है कि जो हमारी एनिमेशन है उसकी बिगिनिंग कैसी होगी, यानी कि उसकी स्टार्टिंग कैसी होगी. हमारी जो स्लाइड शो है वो हमारी एनिमेशन में एंटर कैसे करेगी. These effects make an object fade gradually into focus, fly onto the slide from the edge, bounce view and so on. तो ये सारे जो भी हमारे ऑप्शंस हैं ये एंट्रेंस के हैं कि मतलब इस तरीके से हमारी जो एनिमेशन है वो एंटर करेगी. Then emphasize. These effects make an object shrink or grow in size, change the color or spin on it in the center. मतलब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को श्रिंक कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं. तो ये सारे जो ऑप्शंस है ये हमें एम्फेसाइज ऑप्शन में मिल जाते हैं. देन एग्जिट. ये इफेक्ट कंट्रोल करता है कि कैसे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एग्जिट लेगा ड्यूरिंग द स्लाइड शो. सम ऑफ दीज इफेक्ट्स आर डिसअपियर, फेड, फ्लाई आउट एटसेट्रा. तो ये हमारे वो इफेक्ट्स हैं जिनकी मदद से हमारा जो स्लाइड शो है वो एग्जिट कैसे होगा. नाउ मोशन पाथ. यू कैन यूज दीज इफेक्ट्स टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव अप एंड डाउन, लेफ्ट और राइट. मोशन पाथ को यूज करके हम अपने ऑब्जेक्ट को अप, डाउन, लेफ्ट, राइट कैसे भी हम उसको पैटर्न में या फिर सर्कुलर पैटर्न में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं. दीज इफेक्ट्स एनेबल ऑब्जेक्ट्स टू मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर ऑन अ स्लाइड एंड ऑन द स्पेसिफिक पार्ट ड्यूरिंग स्लाइड शो. और इस ऑप्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी मूव करा सकते हैं अपनी स्लाइड में. हाउ टू अप्लाई एनिमेशन टू टेक्स्ट. अपने टेक्स्ट के अंदर एनिमेशन को कैसे अप्लाई करना है. टू अप्लाई एनिमेशन टू ऑन द करंट स्लाइड फॉलो दीज स्टेप्स. सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट. सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें एनिमेट करना है. देन क्लिक ऑन एनिमेशन टैब. In the animation group, click the more drop down arrow to view the available animations. A drop down menu appears of animations effect will appear. Select the desired animation effect. फिर हमें क्या मिल जाएगा, एनिमेशंस मिल जाएंगे, हमारे पास इफेक्ट्स आ जाएंगे जहां से हम अपनी एक डिजायर्ड एनिमेशन चूज कर सकते हैं. द इफेक्ट विल अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट. और जो हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा. द ऑब्जेक्ट विल नाउ हैव अ स्मॉल नंबर नेक्स्ट टू इट शो दैट इट हैज एन एनिमेशन. जो ऑब्जेक्ट है उसके पास एक ऐसे छोटा सा स्मॉल सा कोई भी नंबर हमें देखने को मिल जाएगा जो बताएगा कि yes it has animation on it. Also in the slide pane, the slide will now have a star symbol next to it. और जो slide pane होता है उसमें भी जो हमारी स्लाइड है जिसपे हमने एनिमेशन अप्लाई करी है उस पे एक स्टार सिंबल वहां पे मिल जाएगा जो ये बताएगा कि स्लाइड के ऊपर एनिमेशन यूज्ड है. नाउ इफेक्ट ऑप्शंस. There are various effect options. Some effects will have options you can change. कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जहां पे हमें चेंज का ऑप्शन मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल विद द फ्लाई इन इफेक्ट यू कैन कंट्रोल विद डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट कम्स फ्रॉम.
और जैसे फ्लाई इफेक्ट के अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आएगा किधर से। These options can be accessed from the effect option command in the animation group। और ये जो ऑप्शन है ये हम अवेल कर सकते हैं एनिमेशन ग्रुप में जाके, और किसमें, इफेक्ट ऑप्शंस में। Then you can apply more than one animation effect for a text। और हम अपने टेक्स्ट के लिए एक से ज्यादा एनिमेशन को भी यूज कर सकते हैं। टू रिमूव एन एनिमेशन, अगर हमें अपने एनिमेशन को रिमूव करना है, सेलेक्ट द स्मॉल नंबर लोकेटेड नेक्स्ट टू द एनिमेटेड ऑब्जेक्ट। वो जो हमारे पास स्मॉल नंबर है जो इंडिकेट करता है कि इस ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन अप्लाइड है, हमें उस पर क्लिक करना है। प्रेस द डिलीट की, फिर हम प्रेस करेंगे डिलीट की को, द एनिमेशन विल बी डिलीटेड, और हमारा जो एनिमेशन है वो डिलीट हो जाएगा। Now animation painter, sometimes you may want to apply the same effect to more than one object। कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने सेम इफेक्ट को एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पे अपनी स्लाइड के अंदर अप्लाई करना होता है। You can do this by copying the effect from one object to another using animation painter। और ये हम कर सकते हैं उस इफेक्ट को कॉपी करके by using animation painter। To use animation painter on any object on the slide, follow these steps। Click on the object that has the effect you want to copy। सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे जिसके पास वो इफेक्ट है जो हमें कॉपी करना है। Then from the animation tab click the animation painter command। एनिमेशन टैब में जाके हमें किसे करना है, एनिमेशन पेंटर कमांड पे हमें क्लिक करना है। क्लिक द ऑब्जेक्ट यू वांट टू कॉपी द इफेक्ट, फिर हम उस ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे जिसपे हमें इफेक्ट को ऐड करना है। द इफेक्ट विल बी अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, और हमारा जो इफेक्ट है वो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। Now what is animation pane? Animation pane allows you to view and manage all of the effects that are on the current slide। Animation pane हमें मदद करता है कि हम उन सारी एनिमेशन इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सके जो हमारी स्लाइड के ऊपर है। Animation pane option in the animation tab help us to modify and reorder animation effects applied to the objects। यानी कि एनिमेशन टैब क्या करता है, वो मॉडिफाई करता है या फिर रीऑर्डर करता है हमारी एनिमेशन को, एनिमेशन इफेक्ट को जो भी हमने अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया है। Opening the animation pane। To open animation pane to view all the effects, follow these steps। From the animation tab click the animation pane command। हमें क्या करना है, एनिमेशन टैब में एनिमेशन पेन कमांड पे क्लिक करना है। द एनिमेशन पेन विल ओपन ऑन द राइट साइड। हमारे को क्या मिलेगा, हमारी राइट साइड में एक एनिमेशन पेन यहाँ पे हमें मिल जाएगा। This will show all the effects for the current slide in order they will appear। और ये हमें वो सारे ऑर्डर शो करेगा कि जिस जिस ऑर्डर में हमारी स्लाइड के ऊपर जो एनिमेशन है वो अप्लाई होगी। Now if you have several animated objects, it may help to run the object before reordering them। यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारे एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे स्लाइड पे, तो वो हमें हेल्प करेगा कि हम रन कर सके ऑब्जेक्ट्स को बिफोर रीऑर्डरिंग देम इन द एनिमेशन पेन। यू कैन रीनेम देम इन द सिलेक्शन पेन, और हम उन्हें रीनेम भी कर सकते हैं सिलेक्शन पेन में जाके। टू ओपन द सिलेक्शन पेन क्लिक ऑन एन ऑब्जेक्ट देन ऑन फॉर्मेट टैब। अगर हमें सिलेक्शन पेन खोलना है तो हम अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, then we will click on format tab, then we will click on selection pane, double click on the name of object to rename it। और अपने ऑब्जेक्ट को रीनेम करने के लिए हमें उस पर बस डबल क्लिक करना होगा। To reorder effects from animation pane, on the animation pane click and drag an effect up or down। सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे इफेक्ट अप और डाउन, द इफेक्ट विल बी रीऑर्डर्ड, और हमारा जो इफेक्ट है वो रीऑर्डर हो जाएगा। टू प्रीव्यू इफेक्ट फ्रॉम द एनिमेशन पेन, अगर हमें एनिमेशन पेन में प्रीव्यू करना है इफेक्ट को तो क्या करेंगे, फ्रॉम द एनिमेशन पेन क्लिक ऑन प्ले बटन, द इफेक्ट्स ऑफ द करंट स्लाइड विल प्ले, और जो हमारी करंट स्लाइड के इफेक्ट्स है वो प्ले होंगे ऑन द राइट साइड ऑफ द एनिमेशन पेन। You will be able to see a timeline that shows the progress through each effect। और जो राइट साइड में हमारे पास पेन है उसके अंदर हमें अपने इफेक्ट्स की हमें क्या दिखेगी, प्रोग्रेस दिखेगी थ्रू ईच इफेक्ट। Now effect option dialog box। From the animation pane you can access the effect option dialog box which contains more advanced options। You can use it to fine tune and animations। हम क्या कर सकते हैं, एनिमेशन पेन में हम एक्सेस कर सकते हैं इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स को, जो क्या कंटेन करता है, मोर एडवांस ऑप्शंस को कंटेन करता है जो हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड ट्यून एंड एनिमेशंस, ट्यून योर एनिमेशंस। नाउ ओपनिंग द इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स को हम कैसे ओपन करेंगे, टू फ्रॉम द एनिमेशन पेन सिलेक्ट एन इफेक्ट। एनिमेशन पेन में से हमने किसी एक इफेक्ट को सिलेक्ट करा,
a drop down arrow will appear next to the effect. हमारे इफेक्ट के जस्ट साइड में हमें एक ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा. क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो एंड सिलेक्ट इफेक्ट ऑप्शन. ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके हम इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. द इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, और हमारा जो इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स है वो खुल जाएगा लाइक दिस. फ्रॉम हियर यू कैन ऐड वेरियस एनहेंसमेंट्स टू द इफेक्ट, और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने इफेक्ट के अंदर बहुत सारी एनहेंसमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं. नाउ sound. This adds a sound effect to our animation. After animation, this changes the color after the animation is over. Animate text. If you are animating text, you can choose to animate it all at once, one word at a time, one letter at a time. Changing effect timing. To change the effect timing, what we have to do is from the effect option dialog box, select timing tab. From here, you can add a delay before the effect starts, change the duration of the effect and control whether the effect repeats. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टाइमिंग टैब में जाके अपनी एडवांस बिफोर आफ्टर अपने इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखता है. स्टार्ट, डिले, ड्यूरेशन, रिपीट, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं. So students, this was your complete chapter about various advanced features of PowerPoint. I hope all the topics are clear to you, that how we can add changes, how we can add animations, how we can add effects on our text. So do revise the chapter and practice the exercises. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.